ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ہر قسم کی تعریف، ہر قسم کی بڑائی، بزرگی، حمد و ثنا اللہ رب العزت کے لیے لائق و زیبا ہے، جو ہم سب کا حقیقی معبود پالنہار ہے۔ درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، تمام رسولوں پر، خصوصاً ہم سب کے آخری نبی، پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم حاضرین اور عزیز مائیں اور بہنیں، ہم سب کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مستجاب الدعوات تھے، یعنی آپ کی دعائیں قبول ہو کر رہتی ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو رد نہیں کرتا ہے۔ آپ کی دعا میں بڑی تاثیر تھی، یہی وجہ ہے کہ ہر شخص چاہتا تھا کہ نبی ان کے حق میں دعا کریں، حتیٰ کہ جو غیر مسلمین تھے، نبی کو نبی نہیں مانتے تھے، وہ بھی آپ سے دعا کی درخواست کرتے تھے۔ جیسا کہ یہود آتے تھے آپ کے پاس اور آپ سے دعا کی درخواست کرتے تھے کہ آپ ان کے حق میں روزی کی کشادگی کی دعا کریں، تو آپ مصلحت کے پیش نظر اللہ سے قریب کرنے کے لیے ان کے حق میں دعا کرتے تھے۔ محترم حاضرین، صحابہ کرام کی بڑی تمنا ہوتی تھی، ان کی بڑی آرزو ہوتی تھی کہ نبی ان کے حق میں دعا کریں۔ اس کا اندازہ اس حدیث سے کیجئے کہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب وفات ہوئی، دفن کے وقت نبی علیہ السلام نے ان کو اپنے ران پر سلایا اور آپ نے ان کے حق میں ایک عظیم دعا کی، جس کو سن کر کے صحابہ کرام کہا کرتے تھے یا لیتنا کنا مکانہ، کاش ان کی جگہ ہم ہوتے۔ صحابہ کرام کو، صحابیات کو نبی کی دعا سے کتنی خوشی ملتی تھی، اس کا اندازہ اس بات سے کیجئے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام آئے تو آپ بہت ہی خوش نظر آ رہے تھے، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں میں نے اس موقع سے فائدہ اٹھایا، میں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے حق میں دعا کریں، تو آپ نے فرمایا اللہم اغفر لی عائشہ، اے اللہ عائشہ کی تمام خطاؤں کو جو ہو چکے ہیں یا ہونے والے ہیں، جو پوشیدہ ہیں یا ظاہر ہیں، سب کو معاف کر دیں۔ یہ سن کر کے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنی خوشی ہوئی، اتنی ہنسی ان کو آئی کہ مارے خوشی اور ہنسی کے نبی علیہ السلام کے گود میں ان کا سر آ گیا۔ آپ نے کہا عائشہ میری دعا سے اتنی زیادہ خوشی؟ کہا کیوں نہیں، دعا کس نے کی ہے؟ آپ نے کی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ آپ مستجاب الدعوات ہیں، آپ کی دعا اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ انہا لدعوتی لامتی فی کل صلاۃ، قسم اللہ کی یہی دعا میں ہر نماز میں اپنی امت کے حق میں کرتا ہوں۔ میرے بھائیو، امت کون ہے؟ ہم اور آپ ہیں۔ کتنے پیارے رسول ہم پر کتنے مہربان تھے کہ ہر نماز میں آپ کے حق میں، ہمارے حق میں دعا کرتے تھے۔ محترم حاضرین، نبی علیہ السلام کی دعا میں کتنی تاثیر تھی، اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کیسے قبول کرتا تھا آپ اندازہ کیجئے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میری والدہ مجھے لے کر کے نبی علیہ السلام کے پاس آئیں اور کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرا بیٹا انیس ہے، میں آپ کے پاس لے کر آئی ہوں تاکہ یہ آپ کی خدمت کرے
तो आप इनके हक में दुआ कीजिए। तो आपने दुआ की, अल्लाहुम्मा रज़ुक़हु मालन व वलदन व बारिक लहु फीह, कि अल्लाह तू इनको औलाद दे, माल दे और इसमें बरकत दे। इस दुआ का नतीजा क्या हुआ, इसका असर क्या हुआ? खुद कहते हैं, कसम अल्लाह की मैं सबसे ज्यादा मालदार हूं और मेरी औलाद और औलाद की औलादें तकरीबन 100 के करीब पहुंच चुके हैं। और सही बुखारी की रिवायत है, कहते हैं कि मैं मदीना में सबसे मालदार हूं और मेरी बेटी उमैना ने मुझसे बयान किया कि आपकी सुलभी औलाद में से 120 औलाद वफात पा चुकी है आपकी जिंदगी में। और कहते हैं कि मेरी जमीन साल में 2 बार फल देती थी, जबकि उसी बस्ती में, उसी इलाके में कोई और जमीन 2 बार फल नहीं देती थी। ये हमारे प्यारे नबी की दुआ थी कि खूब बरकत होती थी। और सुने, नबी की दुआ का असर आज तक मौजूद है। कैसे मौजूद है? सामने किराम, आप जानते हैं कि जब सहाबे किराम ने इस्लाम की खातिर, दीन की खातिर सब कुछ कुर्बान कर दिया, घर बार छोड़ दिया, मदीना मुनव्वरा पहुंचे तो वहां बीमार रहने लगे। बाद सहाबा मक्का की मोहब्बत में अशआर पढ़ते थे, अशआर गुनगुनाते थे। ये देखकर नबी अलैहिस्सलाम ने मदीना के हक में दुआ की, अल्लाहुम्मा हब्बिब इलैनल मदीना का हुब्बिना मक्का। ऐ अल्लाह, हम सब के दिल में मदीना की ऐसी मोहब्बत पैदा कर दे जैसी मोहब्बत मक्का से है, बल्कि मक्का से कहीं ज्यादा मदीना की मोहब्बत पैदा कर दे। और मदीना को सेहत व आफियत अता फरमा, इसमें बरकत दे और इसके बुखार को जुहफा की तरफ मुंतकिल कर दे। मोहतरम हाज़रीन, इस दुआ का नतीजा क्या हुआ? सहाबे किराम कहते हैं, सहाबे किराम मक्का से कहीं ज्यादा मदीना से मोहब्बत करते थे। आज भी मुसलमान मक्का से कहीं ज्यादा मदीना से मोहब्बत करते हैं। और मदीना के अंदर बरकत ही बरकत है और मदीना के अंदर सेहत व आफियत है। अभी हालिया दिनों में WHO ने मदीना मुनव्वरा को हेल्थ सिटी करार दिया है, यानी सेहतमंद शहर करार दिया है। और यही खिताब, यही अवार्ड सन 2019 के अंदर मदीना मुनव्वरा को मिल चुका है। तो मेरे भाइयों, ये हमारे प्यारे नबी की दुआ की बरकत है कि आज दुनिया भी इसका इकरार और इतराफ कर रही है। तो मोहतरम हाज़रीन, ये 2 हदीसें मैंने आपके सामने रखी ये बतलाने के लिए कि नबी जब किसी के हक में दुआ करते हैं तो वो शख्स कामयाब होता है, नबी की दुआ नहीं होती है। तो मोहतरम हाज़रीन, हम सब चाहते हैं, सबकी तमन्ना है कि हम भी नबी की दुआ हासिल करें, नबी के दुआ के मुस्तहिक बने। तो क्या मुमकिन है आज के वक्त में, आज के जमाने में, क्या नबी की दुआ मिल सकती है? बिल्कुल मिल सकती है। कुछ आमाल हैं, उन आमाल को करें, उसको अंजाम दें। आज भी नबी की दुआ पा सकते हैं और हम कामयाब हो सकते हैं, हमारी जिंदगी में खैर व बरकत हो सकती है। वो कौन से आमाल हैं? नंबर 1, तहज्जुद की नमाज पढ़ना और तहज्जुद की नमाज के लिए एक दूसरे को जगाना। नबी अलैहिस्सलाम ने दुआ की है, रहिमल्लाहु रजुलन, अल्लाह ताला उसे शख्स पर रहम करे जो तहज्जुद की नमाज के लिए उठता है, साथ में बीवी को भी जगाता है। बीवी नहीं उठती है तो पानी का छिड़काव करता है। अल्लाह ताला उस औरत पर रहम करे जो तहज्जुद की नमाज के लिए उठती है, साथ में शौहर को भी जगाती है। शौहर नहीं उठता है तो पानी का छिड़काव करती है। मोहतरम सामीन, तो नबी की दुआ है तहज्जुद पढ़ने वालों के लिए और तहज्जुद के लिए एक दूसरे को जगाने वालों के लिए। तहज्जुद की बड़ी फजीलत है, बहुत सारे फवाइद हैं। अब देखें, आपने सुना होगा कि फर्ज नमाज के बाद सबसे अफजल नमाज तहज्जुद की नमाज है। और हदीस में आता है, नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मेरे पास हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम आए और कहा कि या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस्मा शिता फइन्नका मय्यितुन, जितना चाहे जिंदगी गुजार लें, जितना चाहे जी लें, बिल आखिर एक दिन वफात होगी, एक दिन मरना है। अहबिब मन शिता फइन्नका मुफारिकुहुन, जिससे जितना चाहे मोहब्बत कर लें, बिल आखिर एक दिन आएगा कि उससे जुदा होना है। वअमल मा शिता फइन्नका मुजज़्ज़िन बिही, जितना चाहो अमल कर लो, उसका बदला मिलकर रहेगा। वालम अन्ना शरफल मोमिन, और याद रखो मोमिन की शराफत इसमें है कि वो तहज्जुद की नमाज पढ़े, क़यामुल लैल का एहतमाम करे। और मोमिन की इज्जत इसमें है कि वो लोगों से बेनियाजी बरते, यानी लोगों का मोहताज ना बने। और ए अल्लाह के बंदो मुसलमानों, बहुत बड़ी बात हजरत अबू ममाल बाहिली कहते हैं कि लोगों तहज्जुद की पाबंदी करो, क्योंकि ये तहज्जुद की पाबंदी तुमसे पहले नेक लोगों की आदत रही है। अल्लाह से करीब होने का जरिया है, गुनाहों से बचने का जरिया है, गुनाहों की माफी का जरिया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि तहज्जुद पढ़ने से, रात में अल्लाह के सामने खड़े होने से जिस्मानी बीमारियां खत्म होती हैं। कौन कह रहे हैं? सहाबी रसूल कह रहे हैं। और इनके इस कौल को अल्लामा अलबानी ने हसन करार दिया है। और सामने किराम, आप बराबर सुनते रहते हैं कि हम सब का रब अज़्ज़ व जल्ला हर रात ये जो दुनियावी आसमान दिख रहा है यहाँ पर आता है। कब आता है? जब तिहाई रात का वक्त होता है, यानी फजर की अजान से पहले पहले। और अपने हाथों को फैलाता है, खुद कहता है मैं यदऊनी फअस्तजीब लहू, कौन है जो मुझे पुकारे मैं उसकी पुकार को सुनो, कौन है जो मुझसे मांगे मैं उसे अता करूं, कौन है जो मुझसे बख्शिश तलबे मैं उसे माफ कर दूं। मेरे भाइयों, कब तक रहता है? फजर की अजान तक। तो इस वक्त दुआएं ज्यादा कबूल होती हैं। और नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं
کہ بندہ اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے رات کے آخری حصے میں. تو اگر ہو سکے، ممکن ہو سکے تو اس وقت اللہ کو یاد کرنے والوں میں سے ہو جاؤ، بن جاؤ. اور صحیح مسلم کی روایت ہے کہ رات میں ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ جو بھی بندہ اللہ سے مانگے، بھلائی طلب کرے، اللہ تعالیٰ وہ چیز اسے ضرور دے گا. سامنے کرام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ رات کے آخر سحری کے وقت دعا کرنا یہ تیر کے مانند ہے جو کبھی خطا نہیں کرتی ہے. امام ابو حازم کہتے ہیں کہ جب بھی مجھے کوئی پریشانی ہوتی تھی، رنج و غم ہوتا تھا، میں مشکلات میں ہوتا تھا، تو میں کیا کرتا تھا؟ رات کے آخری حصے میں اٹھتا تھا، 2 رکعت نماز پڑھتا تھا، اللہ سے دعا کرتا تھا اور میری حاجتیں پوری ہوتی تھی. اور امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ان کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا میں دعا کرتا ہوں لیکن دعا قبول نہیں ہو رہی ہے. تو انہوں نے کیا کہا؟ سحری کے وقت، رات کے آخری حصے میں دعا کا اہتمام کرو، کیونکہ اس وقت رحمت کا نزول ہوتا ہے، قبولیت کے دروازے کھلے ہوتے ہیں. اس آدمی نے اس پر عمل کرنا شروع کیا، یعنی فجر سے پہلے اٹھ کر اللہ سے دعا کرتا تھا، آخر اس کی ضرورتیں پوری ہو گئی. تو اے اللہ کے بندو، اے مسلمانوں، تہجد کا اہتمام کرو، بھلے 2 رکعت پڑھو لیکن پڑھو. اس وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں، رد نہیں ہوتی ہے، بھلے تاخیر سے قبول ہو لیکن ہوتی ہے. صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ تم میں سے ہر شخص کی فریاد کو سنتا قبول کرتا ہے جب تک کہ جلد بازی نہ کرے. جلد بازی کیا ہے؟ کہتا ہے میں نے دعا کی، خوب دعا کی، کچھ نظر نہیں آ رہا ہے، کچھ فائدہ نظر نہیں آ رہا ہے، پھر چھوڑ دے رہا ہے. حالانکہ حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ دعا قبول کرتا ہے اور 3 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز ضرور دے گا، اور وہی دے گا جو آپ کے حق میں، ہمارے حق میں بہتر ہوگا. وہ 3 چیزیں کیا ہے؟ یا تو آپ کی مانگ پوری ہوگی، یا اگر وہ آپ کے حق میں بہتر نہیں ہے تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر جو مصیبت آنے والی ہوتی ہے اللہ اس دعا کی بدولت ڈال دیتا ہے، یا اللہ تعالیٰ آخرت میں نیکیوں کا ذخیرہ بنا دے گا. مرنے کے بعد آدمی اس سے فائدہ اٹھائے گا اور اس کی سخت ضرورت ہوگی. اس لیے اللہ کے بندو، ضروری نہیں ہے کہ جو آپ مانگ رہے ہیں وہ آپ کے حق میں بہتر ہو، بلکہ کون جانتا؟ اللہ جانتا ہے. اس لیے کثرت سے دعا کریں اور یہ بھی دعا کریں کہ اللہ ہمارے حق میں جو بہتر ہو وہی ہمارے لیے منتخب فرما. تو محترم سامعین، فجر سے پہلے کا جو وقت ہے بہت ہی قیمتی ہے. اس وقت رحمت کا نزول ہوتا ہے، اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، اللہ کی محبت حاصل کرنے کا بہترین موقع ہے، اپنے اور اللہ کے درمیان تعلقات مضبوط کرنے کا بہترین موقع ہوتا ہے. اس وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں، گناہ معاف ہوتے ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب فجر سے پہلے اٹھ کر اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے تو اس کی لذت اور خوشی دن بھر رہتی ہے، یقین مانیے. اس لیے میں تمام لوگوں سے، خصوصاً نمازیوں سے التماس کرتا ہوں کہ تہجد کی نماز پڑھو، بھلے 2 رکعت پڑھو. اور ایک مشورہ ہے، عشاء کے بعد وتر کی نماز نہ پڑھیں بلکہ فجر سے پہلے پڑھنے کی کوشش کریں. اس سے کیا ہوگا کہ وہ قیمتی وقت آپ کو حاصل ہو جائے گی. اور ویسے بھی الحمدللہ ٹھنڈی آ رہی ہے، راتیں لمبی ہو رہی ہیں، نیند پوری ہو جا رہی ہے، تو اب اللہ کے سامنے کھڑا ہونا یہ آسان ہوتا ہے. اس لیے فجر سے پہلے اللہ کے سامنے کھڑے ہوں، دعا کریں، بھلے 2 ہی رکعت پڑھیں لیکن پڑھیں. اسی طرح محترم سامعین، نبی کی دعا حاصل کرنا چاہتے ہیں تو صبح کے وقت سے فائدہ اٹھائیے. صبح کا وقت بہت ہی قیمتی ہے. نبی علیہ السلام نے دعا کی ہے اللہم بارک لی امتی فی بکورہا، اللہ میری امت کی صبح میں برکت دے. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام جب بھی لشکر بھیجتے تھے صبح کے وقت بھیجتے تھے. حضرت صخر غامدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بڑے تاجر ہیں، بڑے بزنس مین تھے. ان کی عادت کیا تھی؟ جب بھی اپنی تجارت کا قافلہ بھیجتے تھے صبح کے وقت بھیجتے تھے، خوب فائدہ ہوتا تھا، خوب برکت ہوتی تھی. حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں، عمر بن خطاب کہتے ہیں لوگوں صبح سے فائدہ اٹھاؤ کیونکہ اس وقت برکت ہوتی ہے. اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ نبی علیہ السلام فجر کے بعد نہیں سوتے تھے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ صبح کے وقت رزق طلب کرنا برکت ہے کیونکہ اس وقت فرشتوں کی دعائیں ہوتی ہیں. اور حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ جو شخص صبح کے وقت قرآن کی تلاوت کرتا ہے اللہ اس کے دل کو روشن کر دیتا ہے، منور کر دیتا ہے اور اس کے پورے دن کو مبارک بنا دیتا ہے. انس بن مالک کہتے ہیں کہ تجار، تاجر لوگ، بزنس مین لوگ صبح کے وقت اپنی تجارت کا قافلہ بھیجتے تھے، خوب فائدہ ہوتا تھا، خوب برکت ہوتی تھی. اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یہ فجر کے بعد سے لے کر سورج نکلنے تک بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ تقسیم کا وقت ہے، اس میں برکت ہوتی ہے. الغرض کہنے کا مطلب یہ سامنے کرام کہ ہمارے جو اسلاف تھے وہ فجر کے بعد نہیں سوتے تھے اور کیا کہتے تھے کہ فجر کے بعد سونے سے برکت ختم ہو جاتی ہے. امام قتادہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ فجر کے بعد سونے سے عقل میں، سوجھ بوجھ میں، رزق میں کمی آتی ہے. اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے خصوصاً ان لوگوں کے لیے جو کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں، کچھ سیکھنا چاہتے ہیں، خاص کر پڑھنے والوں کے لیے کہ صبح کے وقت لکھو، پڑھو، یاد کرو کیونکہ اس وقت یاد زیادہ ہوتی ہے، برکت کا نزول ہوتا ہے. اسی طرح محترم سامعین، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فجر کے بعد اپنے گھر والوں کو جگاتے تھے اور کیا کہتے تھے مجھے تعجب ہوتا ہے ان لوگوں پر جو ایسے وقت میں سوتے ہیں جس وقت روزیاں تقسیم ہو رہی ہیں.
इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि सुबह का वक्त है, बरकत का वक्त है, जो इसे सोने में जाया कर दे वो पूरे दिन की बरकत से महरूम हो जाता है। सामने कराम, तो हमारे जो असलाफ थे, जिन्हें कुरान और हदीस का इल्म था, जो समझदार थे, वो फजर के बाद फायदा उठाते थे। कोई इल्म हासिल करता था, कोई कुरान पढ़ता था, कोई जिक्र अस्कार करता था, कोई दुआ करता था, कोई तिजारत करता था, कोई बड़े बड़े काम करता था, लेकिन खाली नहीं बैठते थे, सोते नहीं थे। क्यों? वो जानते थे कि ये बरकत का वक्त है। और दुआ किसने की है? हमारे प्यारे नबी ने की है, तो बरकत जरूर होगी। और सामने कराम, आप ये भी जाने, हकीकत ये है कि आज गैर मुस्लिमीन हमारे नबी की तालीम पर, हमारे नबी की हिदायत पर अमल कर रहे हैं और उनसे फायदा उठा रहे हैं। इसी हिंदुस्तान के अंदर जब अजान पर पाबंदी की बात हो रही थी, तो कितने गैर मुस्लिमों ने इसकी मुखालफत की, कहा कि नहीं, अजान होनी चाहिए, अजान सुनकर हम उठते हैं और अपना कारोबार करते हैं। हमारे नेपाल में एक पहाड़ी इलाका है, शहर है, मैं वहां इमाम था, मैंने खुद देखा वहां बच्चों को, बच्चियों को फजर से पहले पढ़ने के लिए जा रहे थे, पढ़ाई के लिए जा रहे थे। फजर से पहले दुकानें खुल रही थी और मगरिब की बाद दुकानें बंद हो जाती हैं, और वो खुशहाल थे। वजह क्या थी? वो नबी की तालीम पर, नबी की हिदायत पर अमल कर रहे थे। तो याद रखो मेरे भाइयों, जो भी नबी की सुन्नत पर, नबी की तालीम पर अमल करेगा, चाहे वो काफिर मुश्रिक कोई भी हो, अल्लाह ताला उसकी जिंदगी में बरकत देगा, वो खुशहाल होगा। और जो नबी की सुन्नत की मुखालफत करेगा, चाहे वो मुसलमान क्यों ना हो, अल्लाह उसे जलील खार करेगा। इसी हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों ने कितने सौ साल तक हुकूमत की। उमरा बादशाह रातों में जागते थे, दिन में सोते थे, हत्ता कि इनका नाश्ता दोपहर के वक्त होता था, और वहीं पर अंग्रेज सुबह सुबह उठ करके कारोबार करते थे। नतीजा क्या हुआ? नबी की सुन्नत की मुखालफत से अल्लाह ने हुकूमत खुशहाली सब कुछ छीन लिया। तो मेरे भाइयों, मुट्ठी में बांध लो, जो भी नबी की सुन्नत पर अमल करेगा, अल्लाह उसे तरक्की देगा, चाहे वो मुसलमान हो या गैर मुसलमान हो। इसलिए नबी की तालीम से मोहब्बत कीजिए और तालीम पर अमल कीजिए। इसी तरह मोहतरम सामीन, अगर आप चाहते हैं कि नबी की मोहब्बत हासिल हो, नबी की दुआ हासिल हो, तो फिर नरमी कीजिए, आसानी कीजिए। हदीस में आता है, नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अल्लाह उस शख्स पर रहम करे जो खरीदता है, बेचता है, तकाजा करता है, सब में आसानी करता है, नरमी करता है। गोया कि नरमी करने वालों के हक में नबी की दुआ है, उसकी जिंदगी में बरकत होगी इंशाअल्लाह। हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अपने खातिन को, गुलाम को जब बाजार भेजते थे, तो नसीहत करते थे कि लेन देन में आसानी करना, नरमी करना, ज्यादा फायदे के चक्कर में किसी को तकलीफ मत देना, किसी से मत झगड़ना। कोई कमी करे माल में या कीमत में कमी कराए तो खुशी खुशी उसे कबूल कर लेना। और सईद बिन मुसय्यब रहमतुल्लाह अलैह जो ताबई हैं, उस खरीदार से कहते थे जिसके पास मुकम्मल कीमत नहीं होती थी, जाओ बाद में देना, और अगर बाद में देने की कुव्वत नहीं है तो मेरी तरफ से माफी है। और हदीस में भी आता है, नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, तुमसे पहले एक शख्स था जिसके पास कोई नेकी नहीं थी, कोई नेकी नहीं थी। एक नेकी थी कि लोगों को कर्जा दिया करता था, जो मालदार होते थे उन्हें मोहलत देता था, जो तंगदस्त थे, गरीब थे, परेशान हाल थे, उन्हें माफ कर देता था। अल्लाह ताला ने भी इसके इस अमल की कदर की, उसे जन्नत में दाखिल कर दिया। और नबी अलैहिस्सलाम क्या फरमाते हैं नरमी के ताल्लुक से कि ऐ अल्लाह, जो मेरी उम्मत में किसी चीज का जिम्मेदार बने और वो गलत फायदा उठाए, लोगों को मशक्कत में डाले, लोगों को तकलीफ में डाले, ऐ अल्लाह तो उसकी जिंदगी में मुसीबत डाल दे, तो उसके साथ भी सख्ती फरमा। और ऐ अल्लाह, जो मेरी उम्मत में जिम्मेदार बने किसी चीज का और उन लोगों को फायदा पहुंचाए, लोगों के साथ नरमी करे, आसानी करे, तो अल्लाह उसकी जिंदगी में आसानी फरमा। मालूम क्या हुआ? ओहदा मिलने के बाद अगर हम लोगों को मशक्कत में डालते हैं तो अल्लाह ताला हमारी जिंदगी भी मशक्कत में डाल देगा। और अगर ओहदा मिलने के बाद हम नरमी करते हैं, आसानी करते हैं, लोगों को खुशियां बांटते हैं, तो इंशाअल्लाह हमारी जिंदगी भी आसान होगी। क्यों? हमारे प्यारे नबी की दुआ है। मोहतरम हाज़रीन, अगर नबी की दुआ हासिल करना चाहते हैं तो दीन के ताल्लुक से जो भी बातें मालूम है दूसरों तक पहुंचाएं। हदीस में आता है, नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अल्लाह ताला उस शख्स को तरोताजा रखे जो मेरे हदीस को सुनता है, उसे याद करता है और दूसरों तक पहुंचाता है। तो आप तबलीग जरूर कीजिए, नसीहत जरूर कीजिए, लेकिन हाँ, प्यार से, मोहब्बत से, अखलाक से, अच्छे अंदाज से, जैसे हमारे नबी का तरीका था। हमारे नबी क्या करते थे? जो खूबियां इंसान के अंदर होती थी उसको बयान करते थे, उसके बाद नसीहत करते थे। मिसाल के तौर पर हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु खाने काबा का तवाफ कर रहे थे, तो एक दूसरे को धक्का दे रहे थे। आपने क्या फरमाया? ऐ उमर, यकीनन आप मजबूत आदमी है, तभी आदमी है, खाने काबा के पास एक दूसरे को धक्का मत दिया करो। तो देखें, नसीहत करने से पहले आपने तारीफ की, तो तारीफ करने से होता क्या है? आदमी खुश हो जाता है, उसके बाद नसीहत करेंगे तो आदमी को तकलीफ नहीं होगी और खुशी खुशी कबूल कर लेगा। दूसरा वाकया है, नबी अलैहिस्सलाम ने हजरत मुआज बिन जबल से कहा,
कसम अल्लाह की मुझे आपसे मोहब्बत है, फर्ज नमाज के बाद ये पढ़ना मत भूलना, अल्लाहुम्मा अइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्न इबादतिका। गौर कीजिए, नसीहत करने से पहले आप मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं, आप तारीफ कर रहे हैं, उसके बाद नसीहत कर रहे हैं। इसी तरह हजरत अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को जब आपने नसीहत करना चाहिए तो आपने उनकी खूबियों को बयान किया कि अब्दुल्ला अच्छा आदमी है, नेक आदमी है, काश वो तहज्जुद की नमाज पढ़ता। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह जो अपने वक्त के खलीफा थे, बादशाह थे, जब कोई ऐसा काम देखते जो बुरा होता था, नापसंद होता था और उनको गुमान होता कि अभी टोकूंगा, नसीहत करूंगा तो ये आदमी बुरा मान जाएगा, तो उस वक्त खामोश हो जाते थे, लेकिन भूलते नहीं थे। जब हदिया और तहाइफ इनके पास आता था, वक्त के बादशाह थे, तो हदिया और तोहफा देते वक्त वो बात जरूर रखते थे, नसीहत जरूर करते थे, ताकि हदिया पाने की खुशी में उसे तकलीफ ना हो, नसीहत पर अमल करे। तो मोहतरम सामीन, इन तमाम वाकयात में मैसेज क्या, पैगाम क्या है कि जब नसीहत करें तो प्यार से, मोहब्बत से, जो खूबी है उसको पहले बयान करें। मिसाल के तौर पर कितने ऐसे नमाजी हैं अल्हम्दुलिल्लाह 5 वक्ता नमाज में हाजिर रहते हैं, पहले सब में हाजिर रहते हैं, बहुत बड़ी बात है, लेकिन उनका कपड़ा टखनों के नीचे होता है, जो कि हराम है, सरासर नबी की मुखालिफत है। तो ऐसे लोगों को नसीहत कैसे करेंगे? तो जो खूबियां हम बयान करें कि यकीनन आपके अंदर एक मोमिन की खूबी है, वो खूबी क्या है कि आप 5 वक्ता नमाज पढ़ते हैं, पहले सब में हाजिर होते हैं, और ये बहुत बड़ी बात है, अल्लाह ताला सबको तौफीक नहीं देता है, और ये आपसे अल्लाह की मोहब्बत की पहचान है। तो ये जो कपड़ा टखनों के नीचे है, ये हराम है, ये हमारे प्यारे नबी की तालीम के खिलाफ है। जब इस तरह बातें करेंगे, मोहब्बत के इजहार करेंगे, प्यार से, मोहब्बत से, तो इंशाअल्लाह इंसान को तकलीफ नहीं होगी और उस पर अमल करेगा। इसी तरह सामने किराम, अगर नबी की दुआ हासिल करना चाहते हैं तो अल्लाह ताला का तौफीक दे हज और उम्रे की, तो हज और उम्रा करते वक्त अपने सर के बाल को छिलाएं, मुड़वाएं। नबी अलैहिस्सलाम ने 3 बार दुआ की है, अल्लाहुम्मा अग़फिर वरहम लिल मुहल्लिकीना, कि अल्लाह सर मुड़वाने वालों पर रहम फरमा, उन्हें बख्श दे। 3 बार दुआ की है, और 1 बार दुआ की है उन लोगों के हक में जो बाल छोटा करवाते हैं। तो जब भी अल्लाह तौफीक दे हज उम्रे की, तो जरूर अपने सर के बाल को छिलाएं, ताकि नबी की दुआ हासिल हो और हम सबकी जिंदगी में बरकत हो। अगर नबी की दुआ हासिल करना चाहते हैं तो अल्लाह की राह में खूब खर्च कीजिए। अल्लाह ने क्या फरमाया, खुज़ मिन अमवालिहिम सदक़तन तुतहिरुहुम व तुज़क्कीहिम, कि नबी लोगों के माल से सदका लीजिए, ज़कात लीजिए, उन्हें पाक कीजिए, और हाँ, उनके हक में दुआ कीजिए, क्योंकि आपकी दुआ लोगों के लिए सुकून का जरिया है। एक सहाबी है अब्दुल्लाह बिन अबी औफा, ये नबी अलैहिस्सलाम के पास आए ज़कात का माल लेकर, तो आपने उनके हक में दुआ की कि अल्लाह अब्दुल्लाह बिन अबी औफा के अहल अयाल पर रहम करम फरमा। इसी तरह मोहतरम सामीन, अगर नबी की दुआ हासिल करना चाहते हैं, अपनी जिंदगी में बरकत चाहते हैं, तो असर की नमाज में फर्ज पढ़ने से पहले 4 रकात नफिल नमाज पढ़ें। असर में फर्ज से पहले 4 रकात नफिल नमाज पढ़ें। नबी ने उनके हक में दुआ की, आपने फरमाया रहिमल्लाहु मरअन सल्लल असर अरबान, अल्लाह ताला उस शख्स पर रहम करे जो असर के वक्त फर्ज से पहले 4 रकात नफिल नमाज पढ़ता है। नबी की दुआ हासिल करना चाहते हैं तो सब बंदे के वक्त, जब सब बंदे के लिए खड़े होते हैं तो मिलजुल कर खड़े हों, एक दूसरे से मिलजुल कर खड़े हों, सबको पूरा करें, मुकम्मल करें, मिलकर रहें। आपने ऐसे लोगों के हक में दुआ की, आपने फरमाया है कि जो सबको जोड़ता है अल्लाह उसे जोड़े, और जो सबको तोड़ता है अल्लाह उसे तोड़े। इस हदीस को 3 मुहद्दिसीन ने बयान किया है, और अल्लामा अलबानी ने इस हदीस को सही करार दिया है। मोहतरम सामीन, नबी की दुआ हासिल करना चाहते हैं तो नबी का जो पैगाम था, नबी की जो दावत थी, उसको कबूल करें। अल्लाह ने फरमाया, नबी जो दें उसे ले लो, जिससे मना करें उससे दूर हो जाओ। ऐ अल्लाह के बंदो, याद रखो, जब तक हम नबी के तरीके पर अमल नहीं करेंगे, कामयाबी नहीं हो सकती है। हमारी नीयत भले कितनी अच्छी हो, अमल कितना भी अच्छा हो, लेकिन अगर हमारा अमल नबी के तरीके पर नहीं है, तो याद रखो मेरे मुसलमान भाइयों, मैदान महशर में हम धुतकार दिए जाएंगे, भगा दिए जाएंगे। नबी के हाथ से हौज़े कौसर का पानी नहीं पी सकेंगे। और ये बात कौन कह रहे हैं? हम सबके प्यारे नबी कह रहे हैं। सहीहैन की रिवायत है, बुखारी मुस्लिम की रिवायत है। नबी इस्लाम फरमाते हैं, मेरी मुलाकात, ऐ उम्मत के लोगों, मेरी मुलाकात तुमसे हौज़े कौसर पर होगी। मैं वहां हूंगा, मेरे पास कुछ ऐसे लोग आएंगे, मैं उन्हें पहचान लूंगा, वो मुझे पहचान लेंगे, लेकिन इसके बावजूद उन्हें मुझसे दूर कर दिया जाएगा। मैं फरिश्तों से कहूंगा, फ़इन्नहुम मिन्नी, ये मेरी उम्मत के लोग हैं, आने दो। फरिश्ते कहेंगे, इन्नका ला तदरी मा अहदसु बादक, ऐ नबी आप नहीं जानते, इन्होंने आपकी वफात के बाद दीन के अंदर नई नई चीजें इजाद की थी। तो जब आप ये सुनेंगे तो कहेंगे, सोहकन सोहकन लिमन गय्यर आबादी, दूरी हो ऐसे लोगों से जिन्होंने मेरे बाद दीन को बदल दिया था। इससे मालूम क्या हमारे भाइयों, थोड़ा अमल करो, लेकिन कुरान और हदीस की रोशनी में अपने नबी के तरीके पर अमल करो, यही आपको नजात दिलाएगी। बहुत ज्यादा अमल हो, लेकिन अगर नबी के तरीके पर नहीं है, सारे अमल बर्बाद हो जाएंगे। इसलिए यही दरखास्त है, कुरान और हदीस को सीखो, पढ़ो, समझो, और कुरान और हदीस की रोशनी में अमल करने की कोशिश करो। आखिरी बात सामने कराम वो ये है कि अगर नबी की दुआ हासिल करना चाहते हैं तो जितना ज्यादा हो सके अपने प्यारे नबी के हक में दरूद सलाम भेजें। जितना दरूद सलाम भेजेंगे उतना ही नबी की दुआ हमें हासिल होगी। सही रिवायत है, अल्लामा अलबानी ने सही करार दिया है
नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जब कोई शख्स मुझ पर दरूद और सलाम भेजता है, अल्लाह ताला मेरी रूह वापस कर देता है और मैं उसके सलाम का जवाब देता हूं, यानी मैं भी उसके हक में दुआ करता हूं। तो जितना ज्यादा आप दरूद पढ़ेंगे, जितना ज्यादा दरूद और सलाम भेजेंगे, उतना ही ज्यादा नबी की दुआ हासिल होगी, उतना ही ज्यादा हमारी जिंदगी में खैर और बरकत होगी और हम कामयाब हो सकते हैं। तो अल्लाह से ही दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हम सबको नबी की दुआ हासिल करने की तौफीक अता फरमा। इलाही आलमीन हम सबको अपने प्यारे नबी से मोहब्बत करने और उनकी इताअत करने की तौफीक दे। इलाही आलमीन हम सबको दुनिया व आखिरत की खुशियां अता फरमा। इलाही आलमीन हम तमाम मुसलमानों को, चाहे वो वफात पा चुके हों या जिंदा हो, अल्लाह तो सबको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। इलाही आलमीन हम सबको जो भी मुसीबतें आई हैं या आ रही हैं, अल्लाह तो उसका बेहतरीन बदल दे दुनिया व आखिरत में। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।